بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضور آئے اس وقت میلاد منا لیا, ٹھیک ہے, اب حضور چلے گئے, حضور کو جا کر کے بھی 1400 سال ہو گئے, اب تک کیوں منا رہے ہیں آپ؟ ان کی تو وفات بھی ہو گئی. زندہ لوگوں کے برتھ ڈے منائے جاتے ہیں, زندہ لوگ اپنا جنم دن مناتے ہیں, رسول پاک چلے گئے اب تک کیوں منا رہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں, عالم برزخ میں ہے. لیکن میں آپ کو ایک دلیل کے ذریعے سے یہ بتاؤں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ محفلیں ہوتی ہیں جو کسی خاص شخص کے لیے سجائی جاتی ہیں. ہوتا ہے شادی کا منڈپ, شادی کا ہال, آپ نے دیکھا ہوگا لائٹنگ بھی لگی ہے, کنکمے بھی لگے ہیں, اور پھر پھول بھی لگائے گئے ہیں, کرسی بھی رکھی گئی ہے. کس کے لیے میاں بتائیں؟ دولہے کے لیے. کس کے لیے؟ ایک شادی کا منڈپ اور شادی کا ہال ہے, وہ کس کے لیے سجایا جا رہا ہے؟ دولہے کے لیے. اور باراتی کچھ پہلے آئے, کچھ اس کے ساتھ آئے. پہلے سے آنے والوں نے انتظام کیا اور استقبال کیا, اب کرسی پر لا کر بٹھا دیا گیا دولہے کو. ہال بہت سجا ہوا ہے, پھول بھی لگے ہیں, لائٹ بھی لگی ہے, سب کچھ لگا ہے. دولہے کا نکاح ہو گیا, کھانا ہو گیا, اور دولہا اپنی دلہن کو لے کر رخصت ہو گیا شام میں, یا دولہا چلا گیا. اب مجھے بتاؤ کیا وہ لائٹنگ ویسی رکھی جائے گی؟ کیا وہ پھول وغیرہ ساری چیزیں ویسی باقی رکھی جائیں گی؟ کیا کریں گے؟ نکال دیں گے نا. میاں وہ دولہے کے لیے آج کے دن کے لیے سجایا گیا تھا, شادی ہے, شادی ہو گئی, دولہا چلا گیا تو باراتی بھی نہیں بیٹھتے, چلے جاتے ہیں. دولہا جانے کے بعد حال بھی بے حال ہوگا, سب ختم ہو گئے, کوئی سجاوٹ باقی نہیں رہتی. یہ دنیا کا دستور ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین. اے رسول, اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو بناتا, نہ آسمان کو بناتا, نہ دنیا کو بناتا. اے رسول, جو کچھ بھی یہاں بنایا گیا وہ کس کے لیے بنایا گیا؟ آپ کے لیے بنایا گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا. اب میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ زمین کا بچھونا بچھایا گیا, آسمان کی چھت تانی گئی, اور اس میں سجاوٹ کے لیے تاروں کو جگمگاہٹ دی گئی, چاند اور سورج کو جھلملایا گیا, درختوں کے کنکمے لگائے گئے, دریاؤں کی موجیں بہائی گئی. یہ ساری کائنات کی سجاوٹ بنائی گئی, اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک براتیوں کی شکل میں نبیوں کو بھیجا گیا. سارے انبیاء آئے, ہر نبی نے اس آخری نبی کا ہی قصیدہ پڑھا. ہر نبی نے کہا میں اصل نہیں, میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام نامی محمد ہوگا. ہر نبی نے اس نبی کے آنے کی بشارتیں دی. اب مجھے بتاؤ, یہ کائنات کس کے لیے سجائی رب ذوالجلال نے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. زمین کا بچھونا بچھایا, آسمان کا چھت تانا گیا, تاروں کی جگمگاہٹ, سورج و چاند کی جھلملاہٹ, درختوں کے کنکمے, دریاؤں کی موجیں, یہ ساری سجاوٹ مصطفیٰ کریم آپ کے لیے تھی. نبیوں کی یہ بارات آپ کے لیے تھی. اب 12 ربیع النور کو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولہے کی شکل میں تشریف لائے, اس کائنات میں آ گئے, اور کتنے سال بتائے؟ 63 سال کی زندگی بتائی, اور پھر اس عالم ظاہر سے روپوش ہو گئے. اب جو بات ہمیں کرنی ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بھی, 63 سال یہاں سب کی آنکھوں کے سامنے رہے بھی, اور اس کے بعد آنکھوں سے جلوہ افروز, آنکھوں سے روپوش ہو کر اپنی قبر پاک میں جلوہ بار ہو گئے. لیکن اب سوال جو ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں تو دیکھا دولہے کے جانے کے بعد سجاوٹ نکال دی جاتی ہے, دولہے کے جانے کے بعد محفل میں سے لائٹنگ بھی ختم ہوتی ہے, پھول بھی نکال لیے جاتے ہیں, کرسی بھی ہٹا دی جاتی ہے, سب ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں, اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے یہ جو چیزیں سجائی گئی تھی, چاند ابھی کیوں چمک رہا ہے, سورج ابھی کیوں جھلملا رہا ہے, تارے ابھی کیوں جگمگا رہے ہیں, یہ درخت ابھی کیوں باقی ہیں, یہ سمندر کی لہریں ابھی کیوں باقی ہیں, یہ زمین کا بچھونا ابھی کیوں بچھایا گیا, آسمان کا چھت ابھی تک کیوں تانا گیا؟ تمہیں جواب ملے گا, نادان تجھے پتا نہیں, وہ دولہا ابھی زندہ ہے. السلام علیکم دوستو, ناظرین اکرام, تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ بہت ہی خوشخبری کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو آپ سبھی کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں. جو یہ ویڈیو بہت ہی اہم اور خاص ہونے والا ہے, کیونکہ ہم لوگ جس سے محبت کرتے ہیں, ہم سبھی کے جو آقا ہے ان کے بارے میں یہ ویڈیو ہے, اور ان کا جو سیرت ہے اس کے حساب سے ویڈیو میں لایا ہوں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت پاک کے اوپر جو ویڈیو ہے, بیان ہے, وہ سب میں دکھانے والا ہوں, اس ویڈیو میں سنانے والا ہوں. تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سنتے رہیے اور اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا. اور میں زیادہ وقت آپ سبھی کا نہیں لوں گا, بس تھوڑی دیر میں یہ گفتگو آپ سبھی کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں. یہ ویڈیو ہونے والا ہے ربیع الاول شریف کے بارے میں, اس کے بارے میں کہ وہ کس طرح منانا چاہیے ہم سبھی کو. اور بہت سارے ایسے لوگ بولتے ہیں جو منانا بدعت ہے, شرک ہے, یا جو بھی غلط یا کچھ بولتے ہیں, تو ان کے بارے میں کیا بیان دے رہے ہیں حضرت, وہ آپ لوگ سنیے. اور ہم سبھی کو کیوں منانا چاہیے یہ سبھی بیان اس میں ضرور
होगा। आप सभी लोग सुनिए और हम सभी भी सुनते हैं। तो बिना देरी के मैं उस वीडियो को आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, तो वो वीडियो आप सभी लोग जरूर देखिएगा लास्ट तक। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वो इसलिए पहुंचाइए कि अगले आदमी को भी पता चले कि हम लोग आखिर रबीउल अव्वल शरीफ क्यों मनाते हैं, हम लोग अपने आका की विलादत पाक क्यों मनाते हैं और क्यों हम लोग जुलूस निकालते हैं। तो ये सब भी अगले आदमी को, अगला मुसलमान को भी पता होना चाहिए, और जिसको नहीं पता हो उसको भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज को जान पाए और समझ पाए, और वो भी अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और मोहब्बत करने लगे। तो बिना देरी के उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। कुर्सी भी रखी गई है, किसके लिए मियां बताएं? दूल्हे के लिए। किसके लिए? एक शादी का मंडप और शादी का हाल है, वो किसके लिए सजाया जा रहा है? दूल्हे के लिए। और बाराती कुछ पहले आए, कुछ उसके साथ आए। पहले से आने वालों ने इंतजाम किया और इस्तेमाल किया। अब कुर्सी पर लाकर बिठा दिया गया दूल्हे को। हाल बहुत सजा हुआ है, फूल भी लगे हैं, लाइट भी लगी है, सब कुछ लगा है। दूल्हे का निकाह हो गया, खाना हो गया, और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर रुखसत हो गया शाम में, या दूल्हा चला गया। अब मुझे बताओ, क्या वो लाइटिंग वैसी रखी जाएगी? क्या वो फूल वगैरह सारी चीजें वैसी बाकी रखी जाएंगी? क्या करेंगे? निकाल देंगे ना। मियाँ वो दूल्हे के लिए, आज के दिन के लिए सजाया गया था, शादी है, शादी हो गई, दूल्हा चला गया, तो बाराती भी नहीं बैठते, चले जाते हैं। दूल्हा जाने के बाद हाल भी बेहाल होगा, सब खत्म हो गए, कोई सजावट बाकी नहीं रहती। ये दुनिया का दस्तूर है, इसको जहन में रखें। अब मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, लौलाका लमा खलक़तुद दुनिया वला फलाक वला वदीन। ऐ रसूल, अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं जमीन को बनाता, ना आसमान को बनाता, ना दुनिया को बनाता। ऐ रसूल, जो कुछ भी यहाँ बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया? आपके लिए बनाया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया गया। अब मैं बताता हूँ आपको, ये जमीन का बिछोना बिछाया गया, आसमान की छत तानी गई, और उसमें सजावट के लिए तारों को जगमगाहट दी गई, चांद और सूरज को झिलमिलाया गया, दरख्तों के कुमकुमे लगाए गए, दरियाओं की मौजें बहाई गई, ये सारी कायनात की सजावट बनाई गई। और फिर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बारातियों की शक्ल में नबियों को भेजा गया। सारे अंबिया आए, हर नबी ने उस आखिरी नबी का ही कसीदा पढ़ा। हर नबी ने कहा, मैं असल नहीं, मेरे बाद आने वाले हैं जिनका नाम नामी मोहम्मद होगा। हर नबी ने उस नबी के आने की बशारतें दी। अब मुझे बताओ, ये कायनात किसके लिए सजाई? रब्बे जुल जलाल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जमीन का बिछोना बिछाया, आसमान का छत ताना गया, तारों की जगमगाहट, सूरज और चांद की झिलमिलाहट, दरख्तों के कुमकुमे, दरियाओं की मौजें, ये सारी सजावट मुस्तफा करीम आपके लिए थी। नबियों की ये बारात आपके लिए थी। अब 12 रबीउल नूर को वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हे की शक्ल में तशरीफ लाए, इस कायनात में आ गए, और कितने साल बिताए? 63 साल की जिंदगी बिताई, और फिर इस आलम जाहिर से रूपोश हो गए। अब जो बात हमें करनी है वो यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए भी, 63 साल यहाँ सबके आंखों के सामने रहे भी, और उसके बाद आंखों से जलवा अफरोज, आंखों से रूपोश होकर अपनी कब्र पाक में जलवाबार हो गए। लेकिन अब सवाल जो है हमारा ये है कि हमने दुनिया में तो देखा, दूल्हे के जाने के बाद सजावट निकाल दी जाती है, दूल्हे के जाने के बाद महफिल में से लाइटिंग भी खत्म होती है, फूल भी निकाल लिए जाते हैं, कुर्सी भी हटा दी जाती है, सब खत्म कर दिया जाता है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो उनके लिए ये जो चीजें सजाई गई थी, चांद अभी क्यों चमक रहा है, सूरज अभी क्यों झिलमिला रहा है, तारे अभी क्यों जगमगा रहे हैं, ये दरख्त अभी क्यों बाकी हैं, ये समंदर की लहरें अभी क्यों बाकी हैं, ये जमीन का बिछोना अभी क्यों बिछाया गया, आसमान का छत अभी तक क्यों ताना गया? तुम्हें जवाब मिलेगा, नादान तुझे पता नहीं, वो दूल्हा अभी जिंदा है। तुम जिसके मुतालिक ये बात कर रहे हो वो दुल्हे आम होते हैं जिनके जाने के बाद सजावट निकाल ली जाती है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पाक ऐसी है कि उनके आने के लिए ये सब सजाया गया, और वो अपनी कब्र में है तब भी ये चीजें बाकी रखी गई, इसलिए कि कब्र में वो फितरत के तकाज़ों के एतबार से रब्बे जुल जलाल के वादों के मुताबिक मौत की चादर को तो उन्होंने ओढ़ लिया, लेकिन हमारा अकीदा ये है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और एक अजीजा निगरामी वक़ार, अब एक बात ये भी है कि आज भी हमारे दिलों पर अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो मदीने के ताजदार है। हमने बादशाह अगर किसी को माना है तो अपने रसूलुल्लाह को माना है।
हमारा लीडर, हमारा कायद, कुदवतुना मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे मौला भी हैं, हमारे दाता भी हैं, वही सब कुछ है। इसलिए कि हमने बचपन से कानों से यही सुना, जुबान से यही पढ़ा, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा, गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा, वो हमारा नबी। हमने रसूल पाक को कल भी शहींशाह माना, आज भी मानते हैं, बल्कि कब्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं और हश्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं। हश्र के दिन भी रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान देखी जानी है। अज़ीज़ान गिरामी, इसको भी मैं एक बार मसले से हल कर दूं, बाज़ लोगों ने ये बात छेड़ी है, तो आपको एक बात मैं बताऊं, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सल्तनत और शहींशाहियत को हम इस अंदाज से भी साबित करते हैं कि बादशाहों का निज़ाम आपने देखा होगा, बादशाह जब कुर्सी पर बैठता है तो उसके अगल बगल वजीर हुआ करते हैं, होते हैं, वजीर बैठते हैं। पहले ज़माने का ये उसूल था कि वजीर अगर बादशाह के बगल में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है, बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा। अगर वजीर उठ गए, वजीर चले गए, तो इसका मतलब है कि बादशाह अब अकेला आराम करना चाहता है, अब रियाया करीब नहीं जाएगी, रियाया करीब नहीं जाएगी। ये पुराने ज़माने का दस्तूर हुआ करता कि बादशाह का तख्त जब बिछा जाता और कुर्सी शहंशाहियत की लगाई जाती तो उसके अगल बगल वजीर होते, और वजीरों का होना इस बात की अलामत होती कि बादशाह अपनी बादशाहत पर कायम है और रियाया की सुनने के लिए तैयार है। अब सुनो मेरे अजीजों, रसूल पाक जब तक ज़ाहिरी हयात में थे, हर अमीर और गरीब अपनी हाजतें लेकर रसूलुल्लाह के पास हाजिर होता नहीं होता। सहाबा हैं उसमें, एक सहाबिया अपने बच्चे को लेकर आई, गूंगा है मेरा बेटा, 8 साल 9 साल का हो गया, अब तक बोलता नहीं, हुजूर के पास ले आई, कहा हुजूर इसका कुछ कर दे, कोई दवा खिलाई, कोई दुआ दी, कुछ नहीं। हुजूर पाक ने उसको कहा बच्चे को सामने कर, बच्चा सामने आया, मेरे आका ने सिर्फ इतना फरमाया, मन अना, मैं कौन हूँ, बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह। कुव्वते गोयाई मिली, इतना ही नहीं, एक सहाबी नाबीना थे, वो आए हुजूर की बारगाह में, कहा आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, या रसूल अल्लाह आप कुछ फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया मस्जिद में जाओ, 2 रकात पढ़ो और मेरे नाम से अल्लाह की बारगाह में मांगो। ये दुआ तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। रसूल पाक के वसीले से उस सहाबी ने अल्लाह से मांगी, वो मस्जिद के दरवाजे से निकलने से पहले आंखों में उनके उजाला हो चुका, आंखों में नूर आ चुका था। सहाबा अपनी हाजतें लेकर किसके पास जाते? रसूल पाक के पास जाते। गुनाह हो जाए तो हुजूर के पास जाएं, बीमारी हो तो हुजूर के पास जाएं। यही तो अकीदा बरेली के ताजदार ने हमें दिया था, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करो, छापियो नाफी हो तुम, वापियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा। ये मांगने का तरीका भी हमें सहाबा से मिला है, ये सिर्फ बरेली का अकीदा नहीं है, बरेली वाले ने सहाबा का अकीदा लिया है। बरेली का अकीदा कहाँ से आया? सहाबी से आया। हाँ, एक बात साफ समझ करके चले, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली का अकीदा सहाबी से आया और सहारनपुर देवबंद का अकीदा वहाबी से आया, बस इतना सा फर्क है। और सहाबी का अकीदा वही है जिसको रसूलुल्लाह ने तालीम दी। अब मैं आपको जो बात कहने जा रहा था वो ये है कि जब तक मेरे आका आलम ज़ाहिरी में थे, हाजतें लेकर सहाबा आते रहे। अब लोगों का यही कहना है ना, किसी जोकर ने ये कहा था आप रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, किसी जोकर ने ये कहा था आप रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, सुना होगा आपने। हुजूर पाक अब इंतकाल फरमा चुके, मांगना हराम है, नाउज़ुबिल्लाह, ज़ालिम, तुम्हें पता ही नहीं वो अब भी बादशाह। उस वक्त सहाबा मांगते थे, जाहिर सी बात है वो बादशाह थे। जो मैं बात कह रहा था वो क्या है, वजीर बगल में बैठते हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि बादशाह अभी भी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है। अब सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे 4 वजीर दिए, 2 आसमान में और 2 जमीन में। आसमान के वजीरों का नाम जिब्राइल और मीकाइल है और जमीन के वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। जमीन के वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक के पास जाने वाला हर सुन्नी जानता है मेरे आका की कब्र पाक है, और आपके पहलू में कौन आराम कर रहा है? आपके पहलू में अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर आराम फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया दुनिया में ये दोनों मेरे वजीर हैं। वजीर आज भी पहलू में बैठे, इस बात की अलामत है कि बादशाह अब भी रियाया की आदत है। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, वो रसूल पाक के पहलू में अभी सिद्दीक अकबर भी जलवाबार हैं, फारूक आजम भी जलवाबार हैं। दोनों वजीर उस बादशाह आजम के पास आज भी हैं। ये इस बात की अलामत है कि बादशाह अभी भी उम्मत की हाजतें सुनने के लिए
दरवाज़ा खुला रखा है। और हुजूर पाक फरमाते हैं क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा, जब सूर फूंका जाएगा, महशर का मैदान जो कायम होने वाला है उसके बारे में हुजूर फरमाते हैं जो सबसे पहले महशर के मैदान में अपनी कब्र से उठेंगे कौन? हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं उठूंगा और उसके बाद अबू बकर और फिर उमर उठेंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं मैदान महशर में भी इस हाल में आऊंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा उमर के कंधे पर होगा। या रसूल अल्लाह, महशर के दिन भी दोनों वजीर पहलू में हैं। पता ये चला कि वहां पर भी चलेगी तो सिर्फ मुस्तफा की चलेगी। आला हज़रत ने यही तो फरमाया है, खलील व नजी मसीह व सफी सभी से कहीं ना बनी। यही फरमाते हैं आला हज़रत, खलील व नजी मसीह व सफी सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे। या रसूल अल्लाह, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और महशर का मैदान भी इसीलिए कायम किया गया है, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुर्दा कहे माज़अल्लाह, वो अज़ली मुर्दा है। उसका दिल मुर्दा, उसकी आंखें मुर्दा, उसकी अकल मुर्दा। जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मौला ताला उसकी हिदायत और उसके ईमान को ख़त्म फरमा चुका है, उसके कल्ब पर मोहर लग चुकी है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों का हाल तो ये है। अबू अय्यूब अंसारी जो रसूल पाक के मेज़बान हैं, हुजूर की वफ़ात के 60 साल के बाद हुजूर की कब्र अनवर के पास जाकर बैठते। मरवान बिन हकम जो उस ज़माने का गवर्नर था, वो पीछे से आया, देखा नहीं, जानता नहीं था कौन बैठे हैं, उठाया कि यहाँ क्या कर रहे हो? अबू अय्यूब अंसारी सहाबी का अकीदा सुने, कहते हैं लम आती बिहजरिन बल आती इला रसूलिल्लाह, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। सहाबा का भी यही अकीदा था कि कब्र में जाने के बाद भी वो अल्लाह के रसूल ही हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। मेरे अजीजों, इसीलिए तो आज भी हमारे कलमे में यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद। मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका माना क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कि थे? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इतनी अकल तो मुसलमानों को दी, ग्रामर अरबी के नहीं जानते फिर भी कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो उन जालिमों को क्यों नहीं समझाते जो कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए? माज़ अल्लाह, हम कलमे में भी कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। इसका मतलब है कि आज भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, कल भी थे और क़यामत तक रहेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलम बरज़ख में आज भी बाहयात हैं। अब आइए जो बात शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक है, वो चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ। रसूल पाक के मकाम को हम गरीब और हम गुलाम क्या बयान करें, दर हकीकत हम अपनी शान ही बुलंद करते हैं। जो भी रसूल पाक की बात करेगा उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, इतनी बात याद रखना। जो नबी की बात करेगा उसकी बात बढ़ जाएगी पूरी कायनात में। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन यही तो कहते थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, आप भी कर करके देखो हुजूर पाक की तारीफ और तौसीफ। जब मेरे मुस्तफ़ा की अजमत बयान करोगे कौम तुम्हें अपने सर पर बिठाएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है, जो नबी की इज्जत करेगा अल्लाह पूरी कायनात से उसकी इज्जत करवाएगा, उसकी इज्जत करवाएगा। आज यहाँ तैबा मस्जिद मुमरा की सरजमीन पर यहाँ मौजूद कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने आला हजरत को देखा है। कोई देखा है? नहीं देखा, लेकिन नारा लगता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं पूछता हूँ क्यों मियाँ, तुम्हारे खानदान के थे क्या? तुम्हारा कोई रिश्ता है? ननिहाली दरियाली रिश्ता है? कुछ नहीं। आप यही कहेंगे कि सिर्फ इसलिए नारा लगता है कि वो आला हज़रत कलम उठाते थे तो सिर्फ नाते मुस्तफ़ा किया करते थे, और उन्होंने ही हमें ये सिखाया है, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। जब उनके ज़माने में जालिम ये कह रहे थे पीठ पीछे का इल्म नहीं है, दीवार पीछे का इल्म नहीं है, और गधे के ख्याल के आने से बदतर कहा जा रहा था, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे ज़माने में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कलम उठा करके कहा, क्या कहा? तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। जो अभी आपके सामने मैं पेश किया हूँ, जो काफ़ी बेहतरीन वीडियो ये था और इसमें काफ़ी शानदार बयान हुआ है, जो हम सभी के लिए काफ़ी दिल को सुकून देने वाला बयान था। और ये बयान था जो रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर, जो आप सभी ने जरूर पूरा सुने होंगे, तभी मेरी बात को ये सुन रहे हैं आप सभी लोग। तो मैं कुछ यही बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बस शेयर करिए। मैं सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे मुसलमान होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि आखिर रबीउल अव्वल शरीफ क्यों मनाते हैं, और इससे
منایا اگر جاتا ہے تو اپنے فخر سے، یعنی کہ جو اگلا آدمی کر رہا اسے دیکھا دیکھی لوگ مناتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عزت اور بڑائی، یہ سب بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں۔ اور میں اس لیے بول رہا ہوں شیئر کرنے کے لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت دور ہیں، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سنت پر لوگ عمل رہنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اس طرح کا آج کل کے مسلمان نہیں ہیں۔ اور تو اس لیے میں بول رہا ہوں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں اور وہ سب سمجھے، تاکہ عشق و محبت بڑھے اپنے آقا سے اور اس سنتوں پر چلنے کی کوشش کرے۔ تو میں بس اسی چند باتوں کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو مجھے بولنے میں یا کسی قسم کی غلطیوں خامی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو معاف فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔